Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss about CUET form fill up. Okay, so finally CUET for post graduation form fill up form is released. So we will discuss all these things. Okay, so since I got lot of requests, I should make my video in English. So for first 2 to 3 minutes I will explain briefly whatever I want to say in English so that you can understand, and later on I will tell all the things in Hindi and all. Okay, so let me tell you, CUET, it is a entrance test to get admission in Central University. So under this I think more than 14 to 15 Central University is there. If you crack this exam, you can take any of this Central University seat for master degree. Okay, it's depend on your rank or whatever, how much you score, or the university whatever you have selected to take admission. Okay, so already I have given information regarding CUET for undergraduation. So it is after few days, I mean after I think more than 1 month, finally it came for CUET for post graduation. Even for pharmacy student, whoever either qualified GPAT or non-qualified GPAT, even you not qualified GPAT, it doesn't matter. If you able to crack this exam, you can take admission in Central University. Okay, so for this form fill up is start from 19th of May. So this is the date for form fill up start, 19/5/2022, that means 19 May 2022, and last date of form fill up is 18th June 2022. Okay, so all you need to do, you have to go to NTA official portal, like website is here, www.nta.ac.in, or you can go through like cuet.nta.nic.in. okay, here you have to visit, then you will get all this form and all these things. Before do form fill up, just it's my request that you have to go through with information browser so that you can know all the things, or which Central University you want to take admission. Okay, so here I kept all the Central University list, whatever going to conduct this CUET, or Central University which are under CUET. Okay, try to understand, in all over India almost 38 major Central University is there, but out of those only 24 Central University is under CUET, and other Central University are going to conduct their own exam. So right now I am in Hyderabad, so I want to say that Central University of Hyderabad, or Hyderabad Central University, that is HU is not under CUET. Okay, so if anyone is interested for HU, then you have to give their HU own exam. Okay, so let me tell you whatever Central University is there under CUET. So first of all, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Banaras Hindu University. So BHU is under Central University. Okay, so this is a good thing. Then Central Tribal University of Andhra Pradesh, Central University of Andhra Pradesh, Central University of South Bihar, Central University of Gujarat, Central University of Haryana, Central University of Himachal Pradesh, Central University of Jammu, Central University of Jharkhand, Central University of Karnataka, Central University of Kashmir, Central University of Kerala, Central University of Odisha, Central University of Punjab, Central University of Rajasthan, Central University of Tamil Nadu, Indira Gandhi National Tribal University, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Hembati Nandan Bahuguna Garhwal University, Jawaharlal Nehru University, that is JNU. So JNU is under CUET, that is great things. Then Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya. Then at last Manipur University. Okay, so these are the Central University, all are under CUET. So you have to do one thing. If you are pharma student, for pharma student, I know the code. There is a test paper code. Okay, so for all master degree or all PG courses, they have different code, and based on their code, whatever you are selecting code, based on that you have to give exam in different date, or your question paper will be different. Okay, so for pharma student, code is PGQP24. okay, this is the code, and I think almost 2018, 4 years back, I give this exam and I qualified, and at that time also it was the same code, and
it is shocking that they haven't changed the code yet. Okay, PGQP24, it was 24 at that time also. And let me tell you, since I gave this exam and I know all about this exam, the question pattern will be 25 question from general aptitude portion. Okay, you have not to worry that general aptitude will be very much tough or very difficult maths they will ask. It is not like that. General aptitude is very basic maths. Okay, even class 9-10 level maths will become there, or it's not actually general aptitude is not proper maths, it's under general aptitude only. It's basic things basically. And other 75 question will be from your own subject. I mean, whatever you are going to fill up, like if you do PGQP24 code, then 75 question from pharma field and other 25 question will be general aptitude. Suppose you are giving for MSc chemistry, then your 25 question will be general aptitude and other 75 question will be all chemistry question or whatever you had in BSc. Okay, so this is the pattern definitely. So now I will tell the things in the Hindi. सो जितने भी बच्चे ने जीपेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो आपके लिए कोई निराश होने की जरूरत नहीं है. देखो, जिंदगी में एक चीज होता है, एक लाइन हमेशा याद रखना, आप कभी भी हारते नहीं हो. ठीक है, आइदर यू लर्न और आइदर यू विन और यू लर्न. ठीक है, तो ये एक किसी कोच, एक आपको पता होगा कि नहीं, जो MMA का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, वहाँ पे एक फाइटर है कॉनर मैकग्रेगर, उसका जो कोच है, उन्होंने ये इसके ऊपर एक बुक भी लिखा है कि आइदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लॉस. ठीक है, तो आपने अगर जीपेट क्वालिफाई नहीं किया होगा तो आपको एक चीज़ पता लग गया होगा कि आपका मेहनत जिस लेवल का था, आउटपुट भी उस लेवल का आया है. अब डेफिनेटली ये एक नेशनल लेवल की एग्जाम है, आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, उतना मार्क तक नहीं जा पाया, तो आप क्वालिफाइड नहीं हो. बट यहाँ से आपको सीख क्या मिलना है कि आपको मेहनत करना है नेशनल लेवल की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए. चाहे आप क्लास में टॉपर हो या फिर अच्छे मार्क ला रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको इस लेवल का मेहनत करना होता है कि ताकि आप नेशनल लेवल के एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ. ठीक है, तो वो एग्जाम जो गया उसको भूल जाओ, अभी उसका एक्सपीरियंस लेके CUET क्रैक करके दिखाओ. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप सीट ले सकते हो. अब देखो, आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो मैंने बोला है, इन्फॉर्मेशन वगैरह रहता है, उसको डाउनलोड करना. हालांकि मैं भी डाउनलोड किया हूँ, बट आई एम टू बिजी, मैं उसको पूरा रीड नहीं कर सकता, वो बहुत लंबी है. उसमें पहले ही आपको पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल जाएगा. अगर आपको यूनिवर्सिटी देख के आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चॉइस नहीं आया कि मुझे इसमें तो नहीं पढ़ना है, तो हो गया, तो आपके लिए नहीं है. बाकी देखो, एक बात मैं बोल दूंगा, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ गवर्नमेंट अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम सुन के न जाने क्या फील आता है उनको, कुछ अलग फील, पता नहीं, बच्चों का कुछ माइंड में कुछ और सोचता है, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के लास्ट में जाके कुछ यहाँ पे ही आसपास का कहीं से प्राइवेट में मास्टर डिग्री कर लेता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में आपको पता लगेगा. जो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका जो एक डिमांड होता है, वैल्यू होता है, CB का जो पावर होता है, वो कोई भी जो यहाँ वहाँ से आपके सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप मास्टर डिग्री कर रहे हो ना, उसका 50 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, एटलीस्ट 20 टाइम्स 10 टाइम्स तो ज़्यादा होगा ही, और उससे भी ज़्यादा होगा. ठीक है, आपने अपना मास्टर डिग्री JNU से करके आए हो, और आपने कहीं भी एक सेंट्रल कॉलेज से, सॉरी सेंट्रल नहीं, कहीं भी एक प्राइवेट कॉलेज से कर लिया हो, तो आपको खुद रियलाइज़ होता है कि JNU कहाँ पे है, BHU कहाँ पे है, और कहाँ पे ये प्राइवेट कॉलेज जैसे. ठीक है, और यहाँ पे देखो, क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखा है उन्होंने, हर जगह में लिखा है जीपेट नॉन जीपेट हर कोई एप्लीकेबल है. आपको CUET क्रैक करना है, और उसके बाद अगर मन करे तो आप चला जाना. मेरे टाइम में मैंने CUET क्रैक कर लिया था, उस टाइम CUCT बोलता था इसको, सेम ही थिंग है, क्रैक कर लिया था. बट सेम टाइम मुझे नाइपर में भी अच्छा रैंक आ गया था, और मुझे टॉप 3 नाइपर में मिल रहा था, तो मैं डेफिनेटली नाइपर में ले लिया था. बट अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप CUET दे दो. अगर अच्छा रैंक आ गया और किसी रीजन से नाइपर में अच्छा रैंक नहीं आ पाया, और स्पेशली जितना भी OBC एंड जनरल बच्चे हो, आपको नाइपर में बहुत अच्छा रैंक आना पड़ता है, तभी जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है. ठीक है, नाइपर का भी आप मतलब आपस में रैंकिंग होता है ना, तो रैंकिंग पहले का ही जो अच्छा है उसमें प्लेसमेंट वगैरह सही होता है, चाहे हैदराबाद बोल लो या मोहाली बोल लो एंड अहमदाबाद बोल लो, ये सब में थोड़ा प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलता है. हैदराबाद इज टॉप आई थिंक इन केस ऑफ प्लेसमेंट. मैंने प्लेसमेंट का वीडियो बनाया हो, वहाँ पे जाके आप चीज़ें देख सकते हो. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर चाहो तो CUET दे दो. और बाकी जितने बच्चे जीपेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको तो देना ही है, अपना बेस्ट देना है, ताकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी
से मास्टर डिग्री कर सको, ना कि किसी प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। बाकी फॉर्म फिलअप डेट वगैरह ऑलरेडी मैंने बोल दिया, एक ही है, इंग्लिश में बोला हिंदी में बोला, क्या फर्क पड़ता है। अभी 19 मई से शुरू हो गया और 18 जून तक फॉर्म फिलअप चलते रहेगा। ठीक है, आपको वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पूरा खुद पढ़ना है, उसके बाद आप क्या करना है। ठीक है, कोड मत भूलना PGQP24 एंड आप वापस में देख लेना। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, किसी को अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करना है जो काफी न्यू है या फिर इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो शायद आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या कौन सा सब्जेक्ट से आप कर सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ एक बार। फार्माकोलॉजी से कर सकते हो जो वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद है फार्माकोग्नोसी, उसके बाद है फार्मेसी, सिर्फ फार्मेसी से भी मास्टर डिग्री कर सकते हो। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस भी होता है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एट द एंड फार्मास्यूटिक्स। तो यही है हमारा सब कुछ कोर सब्जेक्ट आ ही गया। बट इसके अलावा भी आजकल बच्चे कुछ मेडिकल डिवाइस या फिर इस तरह का अलग सब्जेक्ट में भी करते हैं, और वो सब में भी करियर अच्छा होता है। स्पेशली मेडिकल डिवाइस स्नाइपर में है और करियर बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट करियर आप यहाँ से मिल सकते हैं इस तरह का सब्जेक्ट से। ठीक है, तो वो यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, ये सब सब्जेक्ट हैं। और कुछ चीज़ें को लेके आप कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने एक बच्चे कन्फ्यूज हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ओके, सो डोंट थिंक दैट दिस इज द PU पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, तीनों यूनिवर्सिटी है सेम नाम से। ठीक है, एक है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में, जो आप NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया में सेकंड में आता है, और उसका अलग ही डिमांड है, वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। और वहाँ पे मैं था कुछ रीजन से, तो मैंने देखा भी वो सब कुछ बेस्ट है, एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद है सेकंड है पंजाबी यूनिवर्सिटी, दैट इज इन पटियाला। ठीक है, तो वो पटियाला में है और उसमें भी मास्टर डिग्री अच्छा लेवल पे है, वो लोग भी रैंकिंग में आता है, बट टॉप 10 में तो नहीं आता, टॉप 20 के आसपास आ जाता है, अच्छा है। ठीक है, और उसमें एक एडवांटेज ये है, बहुत ही कम पैसा से आपका मास्टर डिग्री हो जाएगा, बहुत ही कम पैसा, इतना कम पैसा मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत ही कम पैसा से हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दैट इज इन बतिंदा। ओके, सो तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी होगा, तो आप ये सब देख लेना। और BHU का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, बट BHU CUET से ही करेगा या फिर अपना जो पहले का प्रोसेस है उससे करेगा, आप एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं। ठीक है, BHU डेफिनेटली वन ऑफ द इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है। उसके बाद JNU वगैरह तो है ही, और JNU हो गए या फिर जो भी बाकी यूनिवर्सिटी मैंने बोल रहा हूँ, तो वो सब में आपको कुछ चीज़ें देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है। सपोज आपको करना है फार्मास्यूटिक्स से, तो आपको जितना भी यूनिवर्सिटी मैंने बोला कितना है, 24 ही है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। 24 यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी में जाके देखो कहाँ से आपको मास्टर डिग्री मिल रहा है या फिर कहाँ पे ये कोड एप्लीकेबल हो रहा है। और सपोज वहाँ पे एक कोड तो है, मास्टर डिग्री तो है, बट फार्मास्यूटिक्स का नहीं है, तो वहाँ पे आपको टारगेट नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जा सकते हो। ठीक है, आने वाला दिनों में मैं डिस्कस करूंगा हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बेसिकली फॉर 25 क्वेश्चन आई विल टेल द मोर थिंग्स, so because I believe that you already know most of the things for pharma field. You have qualified GPAT, or even you not qualified, you have done 4 year of graduation and you have learned all the things or most of the major things. Okay, तो वही करो। और जिसको भी फार्मा फील्ड का जो ये चीज़ें है उसको भी रिवाइज करना है ना, तो आप जो भी जीपेट के टाइम में प्रिपेयर किया था वो सबको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, पियर्सन वाला बुक अच्छे से देखो, पियर्सन पब्लिकेशन का। ठीक है, उससे हेल्प हो जाएगा। या फिर इवन नाइपर का जो नाइपर है कंपेनियन है, वो भी देख सकते हो, कुछ होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो और क्वेश्चन हमेशा मेजर सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है। ठीक है, केमिस्ट्री देन फार्माकोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। स्यूटिक से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, एंड फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं आता। जो नाइपर का क्वेश्चन होता है वो ईजी रहता है, इतना ईजी नहीं रहता। जीपेट का लेवल या फिर जीपेट से थोड़ा बहुत हाई लेवल, सेम लेवल बोल लो, आजकल जीपेट भी थोड़ा हाई लेवल आ रहे हैं, तो जीपेट का लेवल का ही बोल लो। इस बार जैसा जीपेट हुआ था ऐसा ही है, बट जो छोटा मोटा सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है या फिर कम आता है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट को फोकस करो, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, स्यूटिक्स, इस तरह का मेजर सब्जेक्ट को फोकस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। देखो अभी भी बहुत सारे चीज़ें हैं, काफ़ी बच्चे जीपेट नहीं होने से डिप्रेस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लर्निंग है आपके लिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वीडियो आएगा।
एंड आता रहेगा वीडियो, बहुत सारी बातें हैं जो करना है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप